Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have discussed about First Islamic Community और उसके साथ एक और टॉपिक था theme based question, if you remember. So we will focus on theme based question, which is very important for most of the schools who are giving paper one, वो ज़्यादातर theme based पे ही दे रहे हैं. तो हमने Allah himself discuss किया और second theme is Allah and his relation with created world. I told you in the last class it looks easy, लेकिन जब आप इसको attempt करते हैं then you realize कि what have to be done, कितने references लिखने हैं, कैसे develop करना है, वो challenge आता है. Model answers are there, but model answers are not all going to be helpful, by the way. There is a reason why model answers are not always going to be helpful, because there are a number of cases in which expectation of the examiner is not fulfilled. ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, थीम बेस्ड क्वेश्चन अबाउट अल्लाह एंड हिज रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड, लेकिन साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा व्हिच आई हैवंट डायरेक्टली डिस्कस्ड व्हेन आई स्टार्टेड अल्लाह हिमसेल्फ टॉपिक देयर. तो उसके अंदर मैंने वो आपसे डायरेक्टली डिस्कस किया था. तो फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज Allah and his relation with created world. What are the passages which are related to Allah and his relation with created world? Do we have to memorize the passage numbers or not? We have to memorize it. Allah and his relation with created world numbers बहुत आसान है, वो इतने मुश्किल नहीं है. So we will talk about that part as well. Let me just check if I have opened that paper specifically. Yes, I have opened it, so I will move from there. Okay, first I will go with my notes. What is there in Allah and his relation with created world? So you can see this is the reading material. Again, Allah himself may be reading material, and similarly Allah and his relation with the created world may be reading material. What do you think Allah has discussed about his relation with the created world, by the way? आपके पैसेज सबसे पहले माइंड में देखें. पैसेज 6 हमारे सिलेबस में है सूरह फातिहा. पैसेज 7 हमारे सिलेबस में कौन सा है? दैट इज सूरह बकरा. ठीक है, उसके बाद पैसेज 7 हमारे पास है सूरह अलक. Passage 8 है सूरह ज़िलज़ाल, and no, I'm missing one thing. सूरह sorry, दुहा नहीं है, sorry. Passage 6 is फिर सूरह नास है ना, लेकिन I think I'm missing, मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में गलत हो गया. सूरह फातिहा is passage 6, सूरह बकरा is passage 7, Surah Alaq is passage 8, Surah Zilzal is passage 9, and Surah Nas is passage 10. So that is what are the passages, and the numbers are also important. Like I have memorized it, I know, but some of you may be not able to memorize it, but it's easy. Passage 6 आपको पता है, पहली सूरह सूरह फातिहा, आपको नंबर 1 याद रहता है. सूरह बकरा 2 है, सूरह बकरा पे हमारे तीनों थीम्स में एक पैसेज है. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट मेन अल्लाह इन हिमसेल्फ में आयतुल कुर्सी है, which is verse 255. अल्लाह इन हिज रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड में पैसेज 21, 22 आपके पास आ जाता है, तो वो आपको नंबर इतना मुश्किल नहीं याद होता. ठीक है, इजी है ना. 2 और फिर 2 1 2 2. मैं बच्चों को कहता हूँ वेरिएंट याद रख लो, पेपर 2 के हैं 2 1 और 2 2. फिर इसके बाद आपके पास पैसेज 7 आपको 8 पता है. सूरह अलग का नंबर क्या है? सूरह अलग का नंबर पता होना चाहिए. आप फर्स्ट वही का इवेंट भी रेफरेंस देते हैं, दैट इज पैसेज नंबर सूरह नंबर 96 and 1 till 5. ठीक है, ये आपका पैसेज 8 है सिलेबस का. और सूरह ज़िलज़ाल का नंबर भी आसान है, दैट इज 99. और फिर सूरह नास है. व्हाट्स द नंबर ऑफ सूरह नास? 114. ग्रेट. तो ये आपको याद रहेगा, इतना मुश्किल नहीं. अब दूसरी चीज है, इन सब पैसेजेस की मेन थीम आपके माइंड में. सपोज मैं आपको सूरह फातिहा की बात करता हूँ. डिड अल्लाह टॉक्स अबाउट हिज what are the, how is Allah's relation discussed in Surah Fatiha? Allah has used a word, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. What's the relation highlighted here? Rabb, Lord. तो आपने Lord के point of view से explain करना है. इसी तरह से आप further जाते हैं, source of guidance, Lord of the day of judgment. This is the way how you will develop it. So you're going to talk about Allah's power and attributes and what's our duty in return. ये आपका Allah's relation with created world सूरह फातिहा के अंदर है. आगे आ जाए सूरह बकरा. मैं आपको उसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता देता हूँ. उसके अंदर है Allah has made the earth as canopy, sorry, the sky as canopy and the earth as the couch. फर्श आपके लिए बेल्ट बनाया. So you have to talk about it. Allah has discussed about plants, trees, rain from the heavens. This is how Allah's relation is highlighted here. Move on. Surah Alaq. What's Allah's relation with the created world highlighted here? He taught, he is a source of knowledge. He taught the humans, and humans source आपका knowledge का पेन का डिस्कशन है. Even God is the creator. पहली वर्स किया है, read in the name of your Lord who created you. तो God as the creator. ये आपके रिलेशंस शो हो रहे हैं. अब आपने उस डेवलपमेंट में ये रेफरेंसेस या डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. दिस इज वन वे टू गो विद इट. आपने हर पैसेज के 3-4 मेन रिलेशंस को माइंड में रखा, अल्लाह एंड हिज रिलेशन विद. आप इसी तरह व्हेन यू मूव ऑन फर्दर यू विल सी सूरह ज़िलज़ाल.
द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द डे ऑफ क़यामा, द डे ऑफ जजमेंट, आप उसको कनेक्ट करते हैं। और लास्टली आपके पास सूरह नास है, अल्लाह की डिफरेंट क्रिएशंस का डिस्कशन है, जिन का है, ह्यूमंस का है। फिर अल्लाह हैज क्रिएटेड शैतान या जो different evil forces and who are always, so this is Allah's relation. Allah has given us free will. Allah has created creations who will misguide us. What's our duty? You need to talk about it. ये तो मैंने आपको एक general lecture दिया, but of course students are looking for model answers for these questions. So again we have a model answer here. When you look at the model question, अच्छा दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पहले बहुत पूछे जाते थे. First look at two questions. There is a minute difference between them, but the answer is almost same. फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट अबाउट ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन काइंड टुवर्ड्स गॉड एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड. इसमें आपके ना बी पार्ट जिसे हम कहते हैं ना, मेन थीम और इंपॉर्टेंस ऑफ द थीम, तो इसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर आ रहा है? ह्यूमंस ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स मैनकाइंड. गॉड की तरफ तो हम लिख सकते हैं ना, वर्शिप नन बट अल्लाह, सी गाइडेंस फ्रॉम नन बट अल्लाह. अगेन आप डेवलप क्रिएटेड वर्ल्ड में क्या ड्यूटीज हैं ह्यूमंस की? इफ यू टॉक अबाउट दिस कंसीडरिंग द पैसेजेस इन आवर सिलेबस. एक्सेलेंट. स्टूडेंट्स बाज़ सिर्फ ना क्रिएटेड वर्ल्ड में ह्यूमंस को डिस्कस करते हैं कि हम अपने फेलो मुस्लिम का ख्याल रखें, दैट्स फाइन, बट द क्रिएटेड वर्ल्ड इंक्लूड्स द रिसोर्सेज व्हिच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड. जैसे अब वाटर है, फर्टाइल लैंड है, ट्रीज है, ये रिसोर्सेज हैं. आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं ना, सस्टेनेबल यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज वगैरह, तो किसी तक आप उस टॉपिक की तरफ भी इसको लेके जा सकते हैं. बट ऑफ कोर्स यू नीड अ प्रॉपर डेवलपमेंट, वो नीचे यहाँ पे है. दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम पैसेजेस यू हैव स्टडीड, राइट अबाउट God's relation. ये easy question है. What God has done for the humans and what is expected from the humans in return. It's two-way relation has to be discussed. Better answer कैसे start होता है कि you will give a brief introductory paragraph that God has mentioned himself as the creator, beneficiary, and the well-wisher, guide, teacher, like knowledge is discussed there. So you will talk about it. और फिर आप लिखेंगे like for example Surah Fatiha speaks about. And then you will go on what how Surah Fatiha speaks about it. You can see in the last three lines. Thus, we should refrain from all entities, all gods other than Allah. Can you see the connection? What Allah has done, Allah's power, attributes, and what's the duties of the human in return? ये आपको यहाँ से develop हो जाता है. ठीक है, ये एक. That's brief, by the way. You have to add a supporting reference in it. And if you think you need more details, go to the main themes. और वहां से आपने पॉइंट्स लेने सूरह फातिहा के अंदर. ऑलराइट, सो स्प्लिट योर आंसर पैराग्राफ है, उसमें 3-4 थीम्स माइंड में रखें सूरह फातिहा की क्या क्या है. अब वहां पे अल्लाह एज अ गॉड, एज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइफ हियर आफ्टर, सोर्स ऑफ गाइडेंस, अल्लाह's blessings, and the people who are good, what is Allah's reaction toward them? Did Allah punish them or Allah gave them relaxation? So you will talk about that. You will talk about the people who got misguided. Even it asks us to make dua, supplication from Allah. तो ये सारा वहां पे जाएगा. ये किसमें आएगा? सूरह फातिहा के अंदर आएगा. When you move on further, सूरह बकरा. Can you see Allah's blessings here? When we were getting the training, की वजह से you can develop it more. It's brief. Some students are asking why you keep the answer brief. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है. और दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट ए स्टार या डिस्टिंक्शन में भी जाता है. तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ए स्टार और डिस्टिंक्शन, तो अगेन देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एडेड. नीचे को 2-3 रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं. इफ यू आंसर एज इट इज, आई कैन से यू विल बी एबल टू 7 और यू
Okay, all right. Sorry for the internet issues. So I hope now you can, no, I will reshare the screen 1 second. Was my screen shown to you people before in the beginning? Okay, all right. Thank you. Okay, moving back to the discussion, and we were talking about. I was just talking about Surah Ala कि मैं आपको explain कर रहा था कि why some students think कि they used to ask me कि आपके answer में इतनी details add क्यों नहीं हुई? उसके multiple reasons हैं. This is the answer of a question if the question is asking you all the 5 passages. But Cambridge has changed the question way. They have asked questions now in specific areas, like they are asking specific passage numbers. Abhi jo latest question aaya tha, they gave 4 passages. They did not give you 5. And they can give you 3, they can give you 2. So if they give you 2 passages, choice bhi hoti hai, kabhi nahi bhi hoti. Agar 3 given hai, for example, or apne 3 karne hai, then this answer is not enough because you will choose 3 from there, but the answer length will be reduced. Now you need to add more details in it. This is where we have to work on. और ये मेन जरूरी चीज है और इसी वजह से आई आस्क द स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन दिस इज अ जनरल क्वेश्चन इफ यू हैव दिस क्वेश्चन this is an ideal answer I can say ideal answer but the only thing needed is a supporting reference in it the rest of the information is going to be fine surah zilzal के ऊपर एक अच्छी information है you can add the details of life after death concept here in it day of judgment से related to details है how the world will come to an end and angel Allah has created angels they have duties and among the angels is Hazrat Israfil alayhi salam and you will talk about his duty right and he will blow in the day of judgment so you will talk about it or other things which you need to yes you can talk about that one exactly and every soul has to taste death वो आ जाएगा बिल्कुल और क़यामा के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होगा this world is temporary it's not forever and it has to end one day and it's going to come to an end by the blow of the trumpet by Hazrat Israfil alayhi salam तो आप इसको डेवलप कर कुछ बच्चे यहाँ सूरह अल-कारिया का रेफरेंस भी देते हैं कि the day in which everything will come to an end the situation can be explained here how the situation will be there the mountains will be scattered वो आप सारा डेवलप कर सकते हैं सूरह नास again that is अब मैं आपको एक चीज बताऊं कैम्ब्रिज ने तो ये इस तरह से दिया हुआ है कैम्ब्रिज हैज नेवर गिवन अ क्वेश्चन ऑफ 2 passages till now about Allah's relation with created world बट अगर कैम्ब्रिज Allah's relation with created world पे एक डायरेक्ट 2 passages पे 10 मार्क का क्वेश्चन बनाएगा तो वो सूरह नास और सूरह फातिहा होंगे सूरह एंड द लास्ट सूरह यस सर जैसे सूरह नास हमने लिखना लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन है जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि इफ सूरह फातिहा एंड सूरह नास नो सर जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें तो ये नहीं उसमें जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन 1 में जस्ट नीड टू स्टिक टू थीम्स सर जो हम्माद बिन निशात की बुक है उसमें किसी एक सूरह में जो रेफरेंस लिखी है वो इमाम जाफर सादिक की लिखी हुई तो हम वो वाली रेफरेंस लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है क्योंकि कुछ रिसोर्स रेफरेंसेस जो हैं वो ओवरऑल सारे स्कॉलर्स के नजदीक एक्सेप्टेबल है और वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही सोर्स से हदीस आई हो या रेफरेंस आया हो पॉसिबली अ सिमिलर सोर्स और रेफरेंस इज कोटेड बाय अदर स्कॉलर्स एज वेल तो वो पॉसिबल है अच्छा अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था जो ट्रिकी है अभी तक नहीं आया दे कैन गिव यू सूरह नास एंड सूरह फातिहा और आराम से इसके ऊपर आप डिटेल बना सकते हैं अब इसमें बैकग्राउंड आ जाएगा ठीक है सूरह फातिहा के अंदर आपकी सिग्निफिकेंस आ जाएगी ओपनिंग चैप्टर ऑफ कुरान है मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो आप वहां पे डेवलप कर सकते हैं कैम्ब्रिज ने अभी तक नहीं दिया हुआ आई एम कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द सूराज में जिसकी तरफ भी आ रहा हूँ लेकिन इजी क्वेश्चन ये ऑल 5 पैसेजेस या यहाँ से जैसे मुस्तफा ने पॉइंट रेज किया था कि 3 चॉइस भी कभी आती है तो आपको वो आप इजीली कर सकते हैं कि इफ एनी 3 कैम्ब्रिज कभी कभी लिमिट नहीं देता तो इट्स पहले तो 3 इनफ थे अब वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट शुड गो विद 4 और इवन 5 बट वेल डेवलप्ड हो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ठीक है और कैम्ब्रिज ने तो अब एक और चीज की है कि दे हैव मेंशन्ड द नंबर्स एंड दे हैव मेंशन्ड रेफरेंस टू ऑल ऑफ देम सो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो विद ऑल ऑफ देम देन ओके that is one easy question now I'm showing you one question which came recently in exams where students did not get good marks ab ye question tha what's the problem with this question it's easy question you can see using the following passages ye May June 2025 Pakistani variant ka question hai and they have given passage 7 8 9 and 10 in your syllabus surah baqarah surah alaq surah zilzal and surah nas अब इसमें प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट्स रोट वेरी परफेक्ट आंसर बट द इशू इज लुक एट द क्वेश्चन वर्डिंग राइट अबाउट गॉड ब्लेसिंग जो मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन सॉरी फ्राइडे की क्लास में एक्सप्लेन करते हुए आपको कहा था एग्जामिनर इज लुकिंग एट द पैसेजेस of course we are going to refer to all of these passages but how is Allah's blessing highlighted
and how is Allah's control highlighted. If you wrote all the themes, but you did not focus on God's blessings and God's control, you will not get marks there. और मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास एक्सेस है ECR का, एग्जामिनर रिपोर्ट का, तो do try to access it and check what is expected here and what was expected by the examiner to reach level 4 of that answer. ये जो मैं बात कर रहा हूँ मई जून 2025 की पाकिस्तानी वेरिएंट का क्वेश्चन है, और इधर आपने एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा समझना है. You see here, that is the core requirement. Can you see that? Candidates are expected to highlight two key aspects. Focus आपके आंसर पे किधर होगा? दो key aspects के ऊपर होगा. You will refer to all passages. अब मैं बाकी चीजें नहीं डिस्कस कर रहा. कैमरेज में लिखा हुआ है weaker responses means level 2 mostly. ठीक है, level 2 के बारे में उसने लिखा हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या था ये भी ख्याल रखना. I told you already कि disjointed paragraphing थी. Paragraphing के आपस में कोई connection नहीं है, linkage नहीं है. तो एक तो ये इशू था. Students try to give an answer about human accountability in front of God, duties, responsibilities, which we are talking about. Most candidates made a clear reference of each reference. कि ये सूरा बकरा ये कहती है, सूरा ज़िलज़ाल ये कहती है. That's a good thing. It's good answer. We need a strongest answer. What was expected in level 4? So look at the expectation of strongest answer. Candidates clearly, correctly reference each passage. Means that they reference each passage means we are talking about Surah Baqarah, or we are talking about which passage here. So they reference to each passage. Now look at, we acknowledge him as a king of kings. That's Allah's power and attributes. And thus we should seek refuge from shaitan. That's a discussion of Surah Nas reference there. If you look at further, you will see blessings कहाँ पे mention हुई हुई हैं? Surah Fatiha में क्या blessings हुई हुई हैं? Ar-Rahman and Ar-Rahim. Okay, and even guidance, source of guidance towards the right path and the wrong path. The blessings on the people who are on the right path, you can see there. And control of Allah is discussed in different areas. You can focus on the word control as well. Like Surah Zilzal is also there, and even Surah Nas is there. But this is the way how examiner is expecting. अगर आप control और blessings पे focus नहीं करेंगे, इसीलिए students का 5-6 out of 10 से ज्यादा नहीं था. कुछ lucky थे. बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपने फोकस किस चीज पे करना है? अकाउंटेबिलिटी इसने ऊपर दिया है. They said कि if you see the good answer, sorry मैं कहाँ चला गया? I missed the question which we were talking about. Yes, we have to see this part. Sorry, I was opening wrong thing here. ये आपने देखना है. Strongest candidates है. आपने ये देखना है. मैं आपको wrong चीज को ओपन कर दी थी. ये आप देखें. Stronger answers में क्या क्या चीजें expected हैं? Control में सूरह ज़िलज़ाल है. Can you see this? और ब्लेसिंग्स की भी हमें ग्रेटिट्यूड वगैरह की नीचे आ रही है, और यहाँ पे नीचे नो आई एम सॉरी आई थिंक आई हैव टू शो यू. वी आर हियर. स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स में ये है सूरह अलक. ठीक है, इसके अंदर इसने मेंशन किया हुआ है ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह. क्या क्या है? नॉलेज है, काइंडनेस अल्लाह ताला की, फॉरगिवनेस आ जाती है, और कंट्रोल में सूरह ज़िलज़ाल को इसने फोकस किया है. तो दिस इज हाउ यू विल डेवलप इट. बट यू आर राइट, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस की बात भी आ जाती है. Accountability का उसने ऊपर लिखा है. Students have covered the answer good and they have mentioned about accountability of humans, लेकिन आंसर में दूसरे इश्यूज थे, इस वजह से वो आंसर हाईएस्ट लेवल में नहीं किया. बट इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन देयर. तो इस चीज को लाजमी, ER को लाजमी देखें. हम इसको वैसे कहते हैं PERT कहते हैं. PERT कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट वर्डिंग है. हम ट्रेनिंग में टीचर्स को कहते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को लाजमी डिस्कस करें. PERT स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर टीचर्स. शॉर्ट फॉर्म में इसको ER लिखा जाता है, एग्जामिनर रिपोर्ट जो है. बट दैट इज गिवन ताकि स्टूडेंट्स को एक फीडबैक पता चले कि मेरे ग्रेड्स क्यों खराब है. क्योंकि कई दफा टीचर्स भी ग्रेड देख के बच्चों से कहते हैं जैसे मार्किंग खराब हुई है. मार्किंग खराब नहीं होती, क्वेश्चन की वर्डिंग समझना जरूरी है. मैं आपको एक दो और क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां पे आपको ये चीज थोड़ी सी और क्लियर होगी. Okay, I will move back to my document first, then I will show you more Cambridge questions there. When we talk about part A, that is mostly asked like that way. Part B is mostly asked in this way. You can see most of the Cambridge questions, part B on Allah's relation with created world is like this. The Quran teaches humans should be responsible for the environment. Again, geography आपका काफी हद तक, या EM अगर आप पढ़ते हैं, environmental management, तो आपके वहां पे कुरान के रेफरेंस से दो टीचिंग्स आपने लेनी है, डेवलप करना है in the way कि it guides us how to take care of the environment. ठीक है, and very good example regarding plantation, trees, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, इसको आप मेंशन कर सकते हैं.
रेफरेंसेस आ जाएंगे कुरान में। अल्लाह ताला कहते हैं, वैसे पार्ट बी में रेफरेंस जरूरी नहीं होता, अगर इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, इट डू नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, तो वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हैज मेंशन इन कुरान, कुलू वशरबू, ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट वेस्ट, तो वो आगे वेस्ट वाला रिसोर्सेज का पॉइंट जो है वो ऐड किया जा सकता है। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड पे, दो पैसेजेस जो हमारे सिलेबस में इस पार्ट में है उसका बैकग्राउंड आ सकता है। विच टू पैसेजेस बैकग्राउंड माइट बी आस्क्ड, वन इज सूरह नास एंड द अदर वन इज सूरह फातिहा का बैकग्राउंड नहीं है। आ सकता है, वैसे अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सूरह नास का तो बैकग्राउंड है, अभी तक आया नहीं है कैम्ब्रिज में, और एक और पैसेज का बैकग्राउंड आ सकता है, तो अभी इस पार्ट में नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसेज 6 till 10, अभी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगर पॉसिबल है, वो बिल्कुल इजी है, दैट इज सूरह अलक, दैट्स द इवेंट ऑफ फर्स्ट वही। तो इफ इट्स देयर यू कैन जस्ट राइट इवेंट ऑफ फर्स्ट वही। सूरह नास का बैकग्राउंड यहाँ पे है। आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस डॉक्यूमेंट लेटर ऑन, बहुत सिंपल सा, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये रेफरेंस है मुस्नद ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल। पेपर 2 के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाइलेशन ऑफ हदीस का टॉपिक जो है। तो जो हदीस की कंपाइलेशन के स्टेजेस हैं, मुस्नद और मुसन्नफ बुक्स ऑफ हदीस हम डिस्कस करते हैं वहां पे। तो ये मुस्नद जो है ना, ये फर्स्ट मुस्नद वर्क है व्हिच वाज डन बाय इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी बुक की हदीस का रेफरेंस है। अकॉर्डिंग टू हदीस, एन अटेम्प्ट of magic was done on holy prophet. Prophets are immune, protected from the magic and all of these things. Allah protects them, but they are humans and they are role model for the humans. Exactly. तो अब हुआ यह था कि Prophet sallallahu alaihi wasallam fell sick. This is the reference to Hazrat Aisha radhiyallahu anha's hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam remained sick और sickness बढ़ती चली गई, and he was not able to remember things sometime. So he understood that something is not normal, and Allah made him understand about this all. He was laying on his bed. Two angels were sent in human form. One stood next to the head, one stood next to the feet of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they talked to each other. What was the dialogue between them? They were asking questions from each other, and the other one answered, "What's wrong with that person? Yeah, what happened to this person?" The answer was, "He is bewitched." Yeah, angels आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? Who has bewitched him? Labid ibn al-Asam. It's the name of a person. Labid ibn al-Asam is a person who is the member of a tribe of Banu Zuwairak. It's a Jewish tribe actually. Okay, so a Jewish person, and he was a hypocrite actually. What did he do? अब उसकी detail है कि he took a long hair of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from a boy who used to comb Holy Prophet's hair. बाल लिया, उसके ऊपर जो भी process होता है, they did it. With what did he bewitch him? With a comb and a hair from the comb. Prophet का एक वो कंघा है जिसे आप कह लें, और उसके अंदर से बाल लिया और उसके ऊपर उसने. What did he do? Where did he place? Where is the comb? It's in the dried bark of a male date palm tree under the rock in a well called Zarwan. अब ये पूरी डिटेल आ गई Prophet sallallahu alaihi wasallam के पास. अब Prophet sallallahu alaihi wasallam sent the companions, and the companions went there. और आपको पता है well से कोई चीज निकालना आसान नहीं है, because well में constant पानी आ रहा होता है. So that companion went there. They managed to take out that comb. Surah Falaq and Surah Nas were already revealed before also. They were revealed second time actually, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked to read it, and the knots were open. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam felt better afterwards. Okay, and Hazrat Aisha radhiyallahu anha and other companions, different sources से हदीस में ये पूछा गया Prophet से कि आप इसको punish क्यों नहीं कर रहे? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ये आप mention कर सकते हैं forgiveness के example के अंदर में. Prophet sallallahu alaihi wasallam's examples of forgiveness, the Jewish person who tried to do the magic attempt on Holy Prophet, Prophet sallallahu alaihi wasallam did not punish him. That's there. What did Prophet say? Why should will you not make it public? Prophet से कहा गया आप इसको publicize क्यों नहीं? क्योंकि इस हदीस की authenticity में भी थोड़ा सा debate है, discussion है. लेकिन जो majority sources से उसको support किया जा रहा है. तो Allah has cured me, and I hate to cause harm to anyone. ये Prophet की kindness में, forgiveness में भी example में जा सकता है. So you can add this point. This is the incident because of which Surah Nas or Surah Falaq. Actually, Surah Nas and Surah Falaq together, they were revealed together, and they are called Surah Falaq and Surah Nas are called, yes. Nahi. Kul to there are 4 actually. We said 4 kuls, but there is a name for it. You were right actually. You were saying something. What were you saying by the way? Starting word is. Okay, I heard someone is saying it. It's Mu'awwizatayn. Mu'awwizatayn means 2 surahs which are recited to seek protection from Allah. It's called Mu'awwizatayn or Mu'awwidatayn. I think it's we mentioned somewhere here. Yeah, this one, first line. These 2 surahs are called. Cambridge का 2009 से पहले का syllabus मैंने 1 साल पढ़ा है वो 2009 से पहले. And that syllabus, they had Surah Falaq in our syllabus as well.
तो उस वक्त सूरह फलक भी थी, सूरह नास भी थी, लेकिन वो थोड़ा पैटर्न ही डिफरेंट था। अब तो वो पास पेपर्स में आता ही नहीं है ना, इतने पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन इस्लाम कैम्ब्रिज इस्लामिया 2009 से जो चेंज हुआ है अभी तक वही है, वही मेजर चेंज नहीं है, माइन्यूट सी चेंजेस हुई हैं, लेकिन पूरा सिलेबस 2009 से 25 और अगले 2 साल भी मेजर कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है इस्लामियत के अंदर। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग इट, दिस इस्लामियत ही है, लेकिन पहले वाले से ये बहुत आसान है। पहले में पेपर 1 और 2 दोनों में कुरान और हदीस दोनों में आता था। वहां थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि क्वेश्चन के अंदर शिया स्टूडेंट्स के लिए अलग एक क्वेश्चन आता था और करके एक सुन्नी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब वो क्वेश्चन जहाँ पे कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होता था वो 2 ऑप्शंस देते थे क्वेश्चन के अंदर। तो अब इन्होंने खत्म करके चॉइस क्वेश्चन कर दिया है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ स्कॉलर्स है वहां कैम्ब्रिज ने दोनों को ऑप्शन दे दिया, अपने वे में आंसर लिख सकते हैं, जैसे प्रेयर का मेथड है और डिफरेंट चीजें हैं। तो खैर अब वो 2009 से ऐसे ही चल रहा है। वहां पे सूरह क्या फलक, मतलब चॉइस का क्वेश्चन? जी जी बोले। सर क्या मतलब चॉइस का क्वेश्चन? चॉइस ये होती थी ना कि वो जो क्वेश्चन आता था वहां पे और लिख देते थे। एक क्वेश्चन होता था जो मोस्टली सुन्नी सपोर्टेड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, और दूसरा शिया सपोर्टेड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, करंटली कंपाइलेशन ऑफ हदीस की हम बात करते हैं गोल्डन पीरियड में, तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की 6 हदीसें हैं, राइट, 6 वो दूसरी शिया 4 स्टूडेंट्स के, हाँ, तो वहां पे लिखा होता था राइट एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग कंपाइलेशंस ऑफ द हदीस, और एक नीचे लिख दिया सिहाह सित्ता और कुतुब अरबा जो शिया स्कॉलर्स की बुक्स हैं, तो स्टूडेंट कैन चूज एनी, तो मार्क्स उसको नहीं मिलते थे। बट दैट वाज टिल 2009, 2009 से भी पहले, बिकॉज 2009 इज द फर्स्ट पेपर। अब इसलिए फरखंदा नूर की थोड़ी पुरानी बुक उठा के देखें, वहां पे लिखा हुआ है 2009, और कुछ की बुक्स में 13 या 15 लिखा हुआ है। वो इसलिए रिवाइज हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेराज का क्वेश्चन है कैम्ब्रिज ने 11 या 12 के पेपर में दिया था, उससे पहले कभी मेराज नहीं आया था, फरखंदा नूर की बुक में था भी नहीं उससे पहले, तो शी अपडेटेड हर बुक अकॉर्डिंगली। एनीवे, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट डिस्कशन, और ये पूरा टॉपिक यहाँ पे आ गया। दिस इज द क्वेश्चन बैंक। ये ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, यू विल फाइंड आउट। आई एम गोइंग टू गो विद सम कैम्ब्रिज क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट अल्लाह एंड हिज रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड। दिस इज आवर मेन टारगेट। कुछ पे क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे। I am focusing more on latest question. I showed you one latest question, that is 2025 question, जो मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट भी जिसकी दिखा दी, और वो ये क्वेश्चन था, that is this one, मई जून 2025। और यहाँ पे ख्याल रखना है, if Surah Fatiha is not mentioned, no need to write about it. Secondly, read the question carefully. If they have restricted, choose 3 passages, to go with 3 passages. If they have not mentioned 3, you are going to talk about, अब इसने आपको यहाँ पे तो चॉइस नहीं दी, लेकिन उसने रिस्ट्रिक्शन एक दे दिया कि God's blessing, and इसीलिए आप मार्किंग स्कीम में देखें, their focus is more on सूरह फलक, सूरह अलक, सूरह जिलजाल एंड सूरह नास मोर। ठीक है, अब यहाँ पे सूरह फातिहा है ही नहीं। आई वाज टॉकिंग अबाउट सूरह फातिहा, तो यू वर नॉट राइट अबाउट गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑफ सूरह फातिहा है। अगर आप वो लिखेंगे वो काउंट नहीं होगी, और इसका रीजन है क्या, मैंने भी देखा नहीं, एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट अल्लाहस ब्लेसिंग्स इन सूरह फातिहा, यहाँ नहीं है, तो सूरह फातिहा आपने रेफर नहीं करना, क्योंकि इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें सूरह फातिहा थी। तो कैम्ब्रिज इज नॉट एक्सपेक्टिंग सूरह फातिहा बाय द वे, वो क्योंकि क्वेश्चन 1 का पार्ट है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर। सिमिलरली पार्ट बी लाजमी देखा करें, बिकॉज वी नॉर्मली सी द पार्ट ए, टीचर के नोट्स होते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। व्हेन वी गो टू पार्ट बी, वी स्ट्रगल इन द आंसर ऑफ पार्ट बी हियर। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर, आर वी एबल टू आंसर अ पार्ट बी प्रॉपर्ली और नॉट। ये थोड़ा सा डिफरेंटली उन्होंने दिया हुआ, वरना पहले अल्लाह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। आई एम कमिंग टू दैट डिस्कशन। थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड पे। एक क्वेश्चन ये लेटेस्ट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज अ इजी क्वेश्चन। राइट अबाउट यूजिंग द पैसेजेस यू हैव स्टडीड। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज माय हैंडआउट फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ये वही चीज है। अब यहाँ पे यू आर फ्री, कैम्ब्रिज ने नीचे मार्किंग स्कीम में बता दिया व्हिच पैसेजेस यू कैन कंसीडर, व्हाट मेथड यू विल अडॉप्ट। सूरह फातिहा का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा उसने दे दिया, सूरह बकरा, सूरह अलक, Surah Zilzal, and then you will see Surah Nas. Of course, it's good to go with all 5 properly developed. But if someone is just referring to 5 and the other student is going in detail of 3, the one who is going in detail and well development of 3 will get more marks than the student who is just going on with, unless Cambridge says refer to all of them. तो फिर आपको फिर जारी बात है सारों को डिटेल में कवर करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको 5 नहीं आते, आप 4 वेल डेवलप करें तो भी आप लेवल 4 पे पहुंच जाते हैं उसके अंदर। एक क्वेश्चन तो ये था, और पार्ट बी देखें, आई टोल्ड यू इट मोस्टली अबाउट एनवायरनमेंट। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन व्हिच आई शोड यू इन माय हैंडआउट। और ये क्वेश्चन एक और है
that came in October November 2021. कैम्ब्रिज ने खुद क्वेश्चन के वर्ड्स को कोर को हाईलाइट भी किया हुआ है. What is expected here using passages write about duties of humankind towards God and towards created world. The duties of humans towards God and यहाँ पे rights and duties of Allah के ऊपर focus नहीं है. और ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. ये ऐसे यहाँ पे भी इसी तरह से डेवलप किया हुआ है. सेम वही चीज, इसमें कोई नई चीज नहीं है. दिस इज अबाउट अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड. कैम्ब्रिज में अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड इसी तरह से आया हुआ है. एक क्वेश्चन उन्होंने अभी तक नहीं दिया हुआ बैकग्राउंड ऑफ द सूरास का इस पोर्शन से, वो अगर आता है तो आपको मैंने उसका हिंट दे दी. लास्ट टाइम वी डिड 4 10 प्लस कंपेनियंस की हम अर्ली लाइफ कर रहे थे, राइट? और समटाइम्स स्टूडेंट्स डू सम ऑफ देम एंड स्किप सम ऑफ देम. लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट क्वेश्चन था व्हिच आई वांट टू शो यू. दिस इज अबाउट कन्वर्जन. ये मई जून 2024 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में आया हुआ है. आपके पेपर में इसके क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो समटाइम्स वी इग्नोर सम पर्सनालिटीज बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड एज अ कंबाइंड क्वेश्चन. तो यू नीड टू कीप इन माइंड, आप अपने स्कूल के एग्जाम में भी इस चीज को माइंड में रखें कि 4 का कन्वर्जन पे नोट आता है. स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग हज़रत अबू बकर की डिटेल क्या आई टोल्ड यू कि आपने हज़रत अबू बकर के अंदर conversion of course without hesitation है. secret preaching का time है. you will talk about prophet की hadith आएगी and also add he not only converted himself, he became a source of support for Islam for other people, friends. आप एग्जांपल्स देंगे. हजरत उस्मान ने भी उन्हीं को बिल्कुल ऐसे ही. तो यहाँ पे आप ये देखें, that is what we need to talk about it. and then हजरत उमर को सबसे ज्यादा डिटेल है because I told you कि that's the most डिटेल्ड वन. प्रॉफिट की दुआ आ जाएगी, पूरा डिस्कशन आएगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ आप बिल्डअप कर सकते हैं. फिर हजरत उस्मान पे भी डिटेल है, थोड़ा सा इसको डेवलप किया हुआ. हजरत अबू बकर के साथ लिंक हुआ है, उनका ड्रीम डिस्कस होगा and then you are able to and you will also talk about कि बनु उमैया में फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट. तो आपका एक अच्छी पॉइंट मिल जाएगा. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे यहाँ ब्रीफ है. आई टोल्ड यू हजरत अली की कन्वर्जन में 2 इवेंट्स आएंगे. एक तो हजरत खदीजा और होली प्रॉफिट को देखा घर में, फिर टेबल वाला, फिर फैमिली वाला बात. पहले आपने लिखना है घर में जो प्रॉफिट को भी देखना है तो खदीजा को, और फिर फैमिली मेंबर्स को जो इनवाइट किया. एग्जैक्टली. तो जो फैमिली मेंबर्स कह लेंगे उसको बाज बुक में लिखा हुआ अशीरतकल अक़रबीन इवेंट. हमाद बिन निशात ने जी दावत का जो लिखा, दावत ज़ुल शहरा बुक में लिखा हुआ है. ये एक्चुअली हमाद बिन निशात ने इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ. दावत ज़ुल शहरा अरबिक में कहते हैं फैमिली को, खानदान वालों को जो है. तो वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन कुरान की वर्स है, उसके रेफरेंस से वो भी आएगा. जी सर, वैसे वो वाली जो दावत थी उसमें खाली बनी हाशिम के बैठे हुए थे, बनी उमैया बाकी ट्राइब्स की बैठे? नहीं, बनु हाशिम था. दैट वाज इनविटेशन फॉर अशीरा. असल में कहते हैं अरबिक वर्ड में थोड़ा सा ना एक क्लोज फैमिली मेंबर्स को कहा जाता है. जो ट्राइब के बिल्कुल क्लोजेस्ट था वो सिर्फ बनु हाशिम ही था उसके अंदर. ठीक हो गया? ओके. अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको कहूंगा कि वो आपने पास पेपर से करना है, बुक्स में उसकी डिटेल नहीं है. जब आप मेरे हैंड आउट को भी ओपन करते हैं या बुक्स को भी मोस्टली ओपन करते हैं, आपको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर हजरत आमना के ऊपर डिटेल्स नहीं मिलती हैं. उस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए आई विल आस्क यू पीपल टू गो टू कैम्ब्रिज 1 पास पेपर क्वेश्चन. वो ये वाला है. दिस इज पाकिस्तानी क्वेश्चन 2023 पाकिस्तानी वेरिएंट है, मई जून पाकिस्तानी. अब ये हजरत आमना के ऊपर और हजरत हलीमा के ऊपर कंबाइंड 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया. स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी था. दे वर लकी के ऊपर वाले क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर किए हुए थे. बट इफ यू वांट डिटेल्स ऑन होली प्रॉफिट्स मदर हजरत आमिना, तो आपने इस मार्किंग स्कीम को ही फॉलो करना है. एंड इट्स कवरिंग अ गुड डिटेल अबाउट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मदर हजरत आमिना, उनके फादर का नाम, मतलब हस्बैंड ऑफ हजरत आमिना की फैमिली मदीना से बिलोंग करती थी. एंड प्रॉफिट के फादर की डेथ से इसको लिंक किया. व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मिरेकल्स है, you can add these miracles in the early life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the time Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. So the miracles at that time of his birth, यहाँ पे Hazrat Amna said that a light came out at the time of the Prophet's birth. A light came. तो ये आप reference mention कर सकते हैं. उस light से she said that I saw that the light spreaded from east to west. East में she saw the palaces. She saw the east was like lighted, and she saw the palaces of the east में तो I think वो है, ये तो west है ना. ईस्ट में जो पर्शिया का इलाका है वो आ जाता है. एंड शी सॉ द सीरिया, द नेक्स्ट ऑफ द कैमल्स वर देयर, एंड देयर वर 3 flags, one on the east, one on the west, and one in the center, Baytullah. That shows that that baby who is born is going to become a source of
guide us to the people, and he will form a government or the empire which will lead from east to west completely. Conquer करेंगे exactly. ये आगे फिर details हैं, more details are there, and हजरत हलीमा के पास भेजा, और फिर her love and care for Holy Prophet कि she knew कि Prophet के father नहीं है. The only sign of the family was Holy Prophet, but she preferred Prophet's future over her love. And she sent Holy Prophet to stay with Hazrat Halima because she wanted Prophet's a better language, better diet and health to आप develop कर सकते हैं. फिर उसके बाद when Prophet was back, so you will connect it with taking Holy Prophet to Medina, and then death at that place of Abwa where she is buried and all of these things. You can talk about. जिस बुक्स में है इट्स फाइन, अगर नहीं है तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं. सेम गोज फॉर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोस्टर मदर हजरत हलीमा पे नोट्स मेरे हैंडआउट में भी है, और आपको यहाँ से भी इंशाल्लाह मिल जाएगा. पास्ट पेपर ये वाला जो है आपने अगर प्रिपेयर करना है फॉर हजरत आमिना एंड हजरत हलीमा में डिटेल कम है. आई विल सजेस्ट कि आप इसको नोट से भी कवर करें, व्हिच विल बिकम अ गुड चॉइस. ये नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक हजरत हलीमा का यहाँ तक डिस्कशन है. अच्छा, हजरत हलीमा से रिलेटेड एक चीज है जो बुक्स में भी नहीं है. जब मैं ताइफ का इवेंट पढ़ा रहा था, समवन एडिट एट द एंड, ये आपने बताया था इब्राहिम ने आई थिंक, हजरत हलीमा प्रॉफिट मुस्लिम ने जब सीज ऑफ ताइफ किया और कॉन्क्वेस्ट हुआ तो प्रॉफिट की फोस्टर सिस्टर हजरत शीमा, शी वाज देयर, केम एज अ कैप्टिव ऑफ ऑल, प्रॉफिट रिस्पेक्टेड हर, और कुछ ट्राइब ने इस्लाम में कन्वर्ट किया, प्रॉफिट ने उनको ब्लेस किया. तो वो भी पॉइंट वहां पे आ जाएगा सामने के बाद. ठीक है, तो ठीक है. और आपने वो भी मेंशन करना है कि एक दफा हजरत हलीमा आई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मैरिज हो चुकी थी हजरत खदीजा के साथ. तो यू कैन आल्सो टॉक अबाउट कि हजरत खदीजा गेव 40 sheep to हजरत हलीमा. तो ये भी पॉइंट हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप द डिस्कशन हियर.